अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। कोई भी बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। एथिकल और अनएथिकल सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली मेरे लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इनकम आ रही है वो जहाँ से आ रही है वो एक एथिकल स्ट्रीम हो। तो इसी लिहाज से मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट अ टॉपिक दैट हैज़ बिन प्लेगिंग माई हार्ट। मेरा दिल बहुत भारी हुआ हुआ है आज, विच इज़ के पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनके जुरिस्डिक्शन में जो जानवर आते हैं, दे गेट मनी फॉर देम, ठीक है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी फॉर देयर फूड, फॉर देयर वाटर, उनके इंक्लोजर्स के लिए। उन जानवरों को मतलब इस हाल में रखा हुआ होता है कि दे आर ऑलवेज जस्ट ऑलमोस्ट डाइंग, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि फिर उनकी फंडिंग रुक जाएगी। आई अर्ज एवरीवन, प्लीज़ रीच आउट टू वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब, to the government of Punjab. This animal cruelty needs to stop. That whoever is responsible in चीज़ों के लिए needs to be held accountable. ये बेजुबान है। As अशरफ अल मखलूक़ात हमारी ड्यूटी है to take care of this earth, और इसमें जो भी जानवर हैं, जो भी इंसान हैं, और जब भी हमें नाइंसाफ़ी नज़र आए कहीं तो हम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। This is not okay. This needs to end. आप लोग गूगल कीजिएगा 2018 जल्लो पार्क, JALLO पार्क पंजाब। प्लीज़ गूगल इट, यू विल सी द आर्टिकल्स, आपको क्लिप्स नज़र आ जाएंगे। यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम टुडे, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पोस्ट की हुई हैं। Allegedly there is a lot of animal cruelty going on and it needs to end. With that, thank you for listening to that. I hope you guys will act on it and welcome back after the Eid holidays and the weekend. उम्मीद है कि weekend और Eid आपकी अच्छी गुजरी होगी। Welcome to another episode of the Inside Scoop. आज हम बात करेंगे बहुत सारी बहुत interesting चीज़ों के बारे में। सबसे पहले as usual हम बात करेंगे about the market. ये कोई आम मार्केट नहीं है, दिस इज़ द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं जहां आप पाकिस्तान की कोई 650 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो मोस्ट डेफिनेटली इट कैन बी लाइफ changing. Moving on, let's view our market's performance and technical outlook, not a buy or sell call. Before we get into PSX, let's talk about one thing. The market has bled out about 3,300 points at opening. 3,300 points, which means आपका index is going down by a lot. This is probably because आपके internationally your trade wars have gotten to a level with President Trump की जो recent announcements हुई हैं. There's a lot of global pressure on आपकी equity markets, on your capital markets. लोग भाग रहे हैं toward आपकी safe haven asset which is gold. इसी लिहाज से बात करने के लिए we have a research analyst from Alphala Investments with us. Fakhar, guys, could you connect him to me please so that we can have this conversation? Hi Mashal, am I audible? Hi Fakhar, thank you so much for being with us. No problem, anytime. Fakhar, where is the market right now? Last I checked, market ने bleed out कर लिए थे 3,300 points. तो अभी market किधर खड़ी हुई है? I think it's still at point. I have not checked in a bit, but yes, the market gained after it was negative for 3,300 points. It has gained 1,000 points, which obviously people are seeing the point to entry in the market right now. Yes, definitely. So, why do you think the market took a correction? Was it आपके tariffs की जो news आई है? Yes, obviously, because I think the tariff news last week has caused uncertainty all over the world. Around $5 trillion of worth of value in terms of value, the global stock markets have lost in just 2 days, on Friday and Thursday, because the tariffs got implemented on April 5th, the 10% baseline tariff. And we are yet to expect the tariff to 50% on 9 April on countries like China and European Union. डेफिनेटली। तो अब हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं आज? विच सेक्टर इज पुलिंग अस डाउन? I think it's the energy sector and basically the fertilizer sector has also taken a hit because of the wheat stuff going on in the country and the farmers not getting the desired prices for wheat. The fertilizer sector are also down, but the main sector which we should be looking into, which is highly affected today, is the energy sector because of the crude oil prices that have gone down globally, which are standing at $60 per barrel
which is obviously because of the global uncertainty. The fear is that higher prices from the tariffs could slow down business activity all over the world, reducing the demand for oil. Most definitely. So, I mean, not a buy or a sell call, लेकिन मार्केट में जब इतनी बड़ी करेक्शन ली, this is a good entry point, क्योंकि वैसे ही हमारे price multiples are very low. What do you think? I think obviously, as you said, the market has been down by 3,000 points today. But something which I would let investors know that people are really underconfident right now in the market because they're really scared of the market right now. But all I need to know is some numbers that I've prepared here that our exports to the US were only 1.5% of the total GDP. So we export worth of $5 to $6 billion annually to US, and we import only $2 to $3 billion, right? So even if this is completely wiped out, this is a highly low chance of completely wiped out. It's not a big deficit or loss for Pakistan. Thank you so much for that live market update, Fakhar. I appreciate you joining us on the show for this. Thank you so much. And we shall get back to the latest news, which is, actually, let's speak about crude oil. Fakhar just mentioned crude oil. So crude oil is crashing, right? Which is good news for Pakistan, import-based country. Fuel is a very big import. Crude oil prices ने देखा है एक notable decline recently, और इसके पीछे कुछ major economic और geopolitical factors हैं, जैसे कि अभी फ़खर ने कहा. सबसे पहले escalating trade tensions. United States ने impose किए हैं fresh tariffs, जिसकी वजह से global trade disputes intensify हो गए हैं. इसकी वजह से एक recession fears trigger हो चुके हैं across the market, का डायरेक्ट असर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे पड़ता है. वी स्पोकन अबाउट दिस. पुलिंग ऑयल प्राइसेस डाउन. दूसरा फैक्टर है कि ओपेक का मूव टू इंक्रीज प्रोडक्शन. ओपीईसी, ओपेक जो है, और उनके एलाइज ने अक्टूबर से ऑयल आउटपुट बढ़ाने का प्लान अप्रूव किया है एज एक्सपेक्टेड. ज़्यादा सप्लाई मार्केट में जब आएगी तो वो डाउनवर्ड प्रेशर आता है आपकी प्राइसेस पे. और तीसरा, मार्केट में वॉलेटिलिटी और इन्वेस्टर एंग्जाइटी. ट्रेड डिस्प्यूट जब आती हैं तो रिसेशन की पॉसिबिलिटी होती है, और ऑयल ओवर सप्लाई ने एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है. इन्वेस्टर्स पुल आउट कर रहे हैं ऑयल से और दूसरी कमोडिटी से, जो फर्दर एक्सेलरेट कर रहा है वो प्राइस का ड्रॉप. तो ये तीन फैक्टर्स, ट्रेड टेंशन, सप्लाई हाइक और इन्वेस्टर फेयर, मिल के बन रहे हैं क्रूड ऑयल के स्लंप के कोर रीजंस. हमारा शो लाइव होता है फ्रॉम 11 to 12, सो वी कांट कवर सारी मार्केट सेशन, और हम ये नहीं बता पाते कि किस तरह परफॉर्म कर रही है लाइव, क्योंकि मार्केट खुलती सुबह 9:30 बजे और बंद होती है 3:30 बजे. बट हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसा शख्स ला सकते हैं इन द मार्केट जो हमें अपडेट दे सकता है. सच एज पीपल लाइक फ़खर हु हैव कम इनटू द शो टू गिव अस लाइव अपडेट्स. वो काम कर रहे होते हैं विद इन द मार्केट्स एंड दे आर टेलिंग अस एग्जैक्टली व्हाट द करंट मूवमेंट्स आर. हमारी कोशिश होती है हम रोज़ ऐसा कोई ना कोई शख्स लाएं जो आप लोगों को एक इनसाइट दें ऑन द मार्केट. विद दैट लेट्स कम टूवर्ड द चार्ट ऑफ द मार्केट. ओके, सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज आज हमारे पास एक स्लाइटली जूम्ड आउट डेली चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारी एक अप ट्रेंड चल रही है. इफ वी टेक द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट, करंटली इट इज़ एन अपवर्ड ग्राफ जो बनता है, विच establishes कि हम currently एक अप ट्रेंड में है, राइट. बट द नेचर ऑफ अप ट्रेंड्स इज़ के आपकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर वो नीचे आती हैं, फिर वो ऊपर जाती हैं, फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है, लोग सेलिंग करते हैं, फिर एंट्रीज आती हैं क्योंकि लोगों को डिस्काउंट्स नजर आते हैं आफ्टर प्रीवियस हाई, फिर मार्केट ऊपर जाती है. एंड करंटली वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन. ऊपर से आपके ग्लोबल ट्रेड वॉर्स जो चल रहे हैं, एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैव मेड आपका एनर्जी सेक्टर, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको बहुत बड़े weights in the index like Mari Petroleum and Oil and Gas Development Company, right? तो उनकी वजह से they've been bringing the market down today in the past couple of days, but that's perfectly fine. There is a huge gap आपकी मार्केट में. there's a gap, it's called a fair value gap. ये गूगल कीजिएगा. what a fair value gap is usually, जब आपका एक बड़ा fair value gap होता है तो आपकी मार्केट की टेंडेंसी होती है कि जाके वापस उस गैप को फिल करे, बिकॉज दैट गैप इज ड्यूरिंग अ करेक्शन. तो इसकी इट इज़ अ साइन कि आपकी जो मार्केट है इज गोइंग टू वंस अगेन गेन सम मोमेंटम. ये आपके टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा होता है. इट्स पार्ट ऑफ चार्टिंग, राइट. सो करंटली वी वर एट रेजिस्टेंस लेवल्स. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑफ कोर्स एक ऑल टाइम
हाई रीच करने के बाद मोस्ट सर्टेनली हमेशा प्रॉफिट टेकिंग आती है. इवन हिस्टोरिकली आपके जब हाइज आते हैं देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट टेकिंग एरिया. इससे पहले जो हाइज बने थे वहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग आई थी. इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिनॉन ऑफ द इक्विटी मार्केट्स. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. बट वन थिंग दैट आई डू वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि जब ऐसे लेवल्स आते हैं तो दीज आर गुड लेवल्स जहां आप बाइंग कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल, लेकिन यूजुअली मार्केट इन द लॉन्ग रन विल ऑलवेज गो अप. सो जब आपको और डिस्काउंट्स मिलते हैं इन अ मार्केट देन यू शुड गेट इन एट गुड लेवल्स एंड देन एट हायर लेवल्स आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो मूविंग ऑन टू रियल एस्टेट या कोई और इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट वाहिद वो जगह है जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में कैश में तब्दील कर सकती है. मीनिंग इट्स हाईली लिक्विड. बट लिक्विडिटी के साथ वॉलेटिलिटी भी आती है. मतलब शेयर प्राइस मूव करती है तेज़ी से ऊपर या नीचे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़ सेगमेंट एंड कैच अप जो हमने इस वीकेंड मिस किया है. टू स्टार्ट ऑफ, बिग न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. इस्लामाबाद गियर अप कर रहा है फॉर 2 बहुत ही अहम अमेरिकन डेलीगेशंस इस हफ्ते. एज डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड वाशिंगटन टेक सेंटर स्टेज. सबसे पहले हमारे पास हाई लेवल टीम है लेड बाय एरिक मायर, सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, लैंडिंग इन इस्लामाबाद अप्रैल की 8 तारीख से और वो यहाँ होंगे अप्रैल की 10वीं तारीख तक. अब सवाल ये है कि ये विजिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ये सिर्फ आपके हैंडशेक्स और फोटो ऑप्स के लिए नहीं है. ये फोकस है, इस दफ़ा फोकस है मिनरल्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स, सो टू बी स्पेसिफिक. द काइंड जो आपके स्मार्टफोन्स पावर करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पावर करते हैं, सोलर पैनल्स. मायर विल अटेंड पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जहां वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से यूएस की कंपनीज पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं. मकसद ये है यूएस कंपनीज को इनकरेज करना कि वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना ताकि एक या 2 कंट्रीज पर डिपेंड करना कम हो जाए. लेकिन बात सिर्फ मिनरल्स तक लिमिटेड नहीं है. मायर विल ऑल्सो मीट पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल ताकि वो डिस्कस कर पाएं ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म भी एजेंडा का हिस्सा है जैसे कि हमेशा होता है. यूएस चाहता है कि वो रीअफर्म करे कि पाकिस्तान अब भी रीजन का सेंट्रल प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू आपकी पीस और स्टेबिलिटी. और अब चलते हैं दूसरी बड़ी विजिट की तरफ. फ्रॉम अप्रैल 10 to 15 एक और पावरफुल यूएस डेलीगेशन आ रही है. कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन और टॉम स्वाजी की लीडरशिप में. दिस इज नॉट जस्ट अ रूटीन ट्रिप. ये लोग मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, डेप्यूटी पीएम इसहाकदार और दूसरे सीनियर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के साथ. उनका एजेंडा क्या आप लोग सोच रहे होंगे? ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन, सिक्योरिटी के एरियाज में पाकिस्तान यूएस टाइज को और मजबूत बनाना. दैट इज़ देयर एजेंडा. ये डेलीगेशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी के बारे में बात करेंगे जहां उन्हें इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के सूरत हाल पे ब्रीफ किया जाएगा. दे विल ऑल्सो विजिट करतारपुर कॉरिडोर टू पे देयर रिस्पेक्ट्स एट बाबा गुरु नानक श्राइन. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग इमरान खान से मिलने जा रहे हैं तो जवाब है नहीं. दिस ट्रिप इज नॉट अबाउट आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स. ये बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फिर से ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट में है. इट मीन्स कि नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन पार्टनरशिप्स और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन का वक्त आ गया है. एड से आगे बढ़कर अब बात हो रही है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की और ये सब आपको मिलेगा यहीं. We're going to be talking daily about the updates on the inside scoop. हमारे अगले सेगमेंट में हम एनालाइज करेंगे ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी किस तरह से इम्पैक्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को और क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वेव को राइड करने के लिए तैयार है या नहीं.
आज हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल रेवोल्यूशन की जो सिर्फ दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान को भी एक नया इकोनॉमिक एरा में लेके जा सकता है. We're talking about blockchain, cryptocurrencies. You guys can see the excitement on my face. Not just digital currencies लेकिन टेक्नोलॉजी जो सिस्टम्स को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाता है. और सबसे एक्साइटिंग बात, पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशियल टू लीड इन दिस स्पेस अगर हम सही मूव्स अभी बनाएं. सबसे पहला स्टेप है इनोवेशन को अनलॉक करना. इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस बनाएं. ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं जहां स्टार्टअप्स और कंपनीज न्यू आइडियाज़ टेस्ट करते हैं बिना रेगुलेशंस का प्रेशर लिए. इससे एक विन विन सिचुएशन बनती है. कंपनीज इनोवेट करती हैं फ्रीली और रेगुलेटर्स को मिलता है रियल टाइम इंसाइट. रिजल्ट स्मार्टर पॉलिसी, स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री. और अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो इंटरनेशनल क्रिप्टो प्लेयर्स भी पाकिस्तान को एक टेस्ट मार्केट की तरह चूज़ करेंगे. लेकिन इनोवेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक लोग एजुकेट नहीं होते. क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समझना आसान नहीं लेकिन ज़रूरी है. गवर्नमेंट को नेशन वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए. स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन कोर्सेज, पब्लिक सेमिनार्स, सब जगह नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स सबको सिखाना होगा कि ये टेक है क्या और कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जा सकता है. जब पब्लिक इन्फॉर्म्ड होगी तभी वो एम्पावर्ड होगी. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ आवर शो. फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इस जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा है. आज भी पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं. उनके पास अकाउंट्स नहीं हैं, एक्सेस नहीं है. यहाँ ब्लॉकचेन बन सकता है गेम चेंजर. डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi. इससे लोग डायरेक्टली लोन्स ले सकते हैं, इंश्योरेंस, सेविंग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ट्रेडिशनल बैंक के. इमेजिन करें कि एक रूरल एरिया जहां लोग सिर्फ फ़ोन से फुल फाइनेंशियल एक्सेस ले सकें. ये विजन असल बन सकता है अगर गवर्नमेंट फिनटेक्स के साथ मिलकर ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को डेवलप करें. और इस पूरे रोड मैप में एक और पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन. क्रिप्टो ग्लोबल है. पाकिस्तान को चाहिए कि FATF जैसे फोरम्स और इंटरनेशनल रेगुलेटर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करें. इससे रेगुलेशंस अलाइन होती हैं. पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट का एक्सेस मिलेगा. फाइनली रेगुलेशंस मस्ट कीप इवॉल्विंग. क्रिप्टो बहुत जल्दी चेंज होता है. टू स्टे अहेड पाकिस्तान को चाहिए कि एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स हो जो मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करे, रूल्स अपडेट करे डायनामिकली. साथ ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स, VC वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डेटा सेंटर्स एंड हाई स्पीड इंटरनेट. तो व्हाट इज़ द एंड गेम? एंड गेम ये है कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू बी लेफ्ट बिहाइंड. स्मार्ट पॉलिसी, पब्लिक एजुकेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन. हम सिर्फ क्रिप्टो अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम बनेंगे क्रिप्टो इनोवेशन के रीजनल लीडर्स. आई एम मशल, आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप. We have a special guest with us, तो हमारे साथ रहेगा. We will be right back after a short break to get a few more market insights from someone very special with us today. So stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि वी वेरी स्पेशल गेस्ट की ये वो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस गिरेंगी. उस टाइम पे जब सबको लग रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, सवाल पैदा ही नहीं होता. तो प्लीज़ टेक अ लुक एट द क्लिप फ्रॉम आवर शो व्हेन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब वाज विद अस लास्ट टाइम एंड टोल्ड अस दिस डेज इन एडवांस. ये न्यूज़ ऑफिशियली निकलने से पहले प्लीज़ देखिएगा. को गुड न्यूज़ दे रहा हूँ. ऑल्दो इस तरह की र्यूमर्स थी कि IMF ने अलाउ नहीं किया है और अब वो हम नहीं कर सकते, बट इंशाल्लाह आप देखेंगी कि विद इन फ्यू डेज प्राइम मिनिस्टर इज गोना अनाउंस कि हमारे एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम आ रही है. रीज़न बीइंग कि जी इस वक्त जो इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी हमारी जो शिकायत थी वो ये थी कि खुदारा हमारे पूरे रीजन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है हमारी सबसे हाईएस्ट इस जगह पे. तो उससे हर कोई सफ़र कर रहा था जी. लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कर रही थी. तो इसमें जब ये चीज़ हो रही है तो आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आएगा. बट ये गुड न्यूज़ ये है कि जी हम मुश्किलात से निकल आए हैं और अब हमारा जो सफ़र शुरू हुआ वो ग्रोथ का सफ़र शुरू हुआ है.
तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने देख लिया कि लास्ट टाइम इश्तियाक साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, ही गेव अस सच अ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक हफ्ता पहले. तो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन. नहीं जी, ये बड़ा वायरल हुआ आपका, और पहले तो मैं 365 को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी. और उस वक्त लाइक आई सेड कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि IMF राज़ी नहीं है, बट PM साहब ने एक बार जब मैं गया था इस्लामाबाद, मेरी मुलाकात हुई तो उसमें ये बतलाया था कि गुड न्यूज़ इंशाल्लाह इट्स ऑन द वे, और वो हुई. और देखिए ये बहुत बड़ी एक तो ये ख़बर जो आई है ये ऐसे वक्त पे आई है कि जिस वक्त जी हमें उसकी अशद ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को. रीज़न बीइंग कि जैसे आपने देखा है कि अभी नए टैरिफ जो हैं अमेरिका ने लगाए हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तान का भी टैरिफ बढ़ा है, बट हमसे ज़्यादा बांग्लादेश का, वियतनाम का और श्रीलंका का इनके टैरिफ बहुत बड़े हैं. हमारे साथ जो एक बिगेस्ट हैंडीकैप था मिसाल वो ये था कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा थी. तो आप यकीन करें, हमेशा बड़े बूढ़े भी ये कहते हैं, किताबों में भी लिखा है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं. 100%. एंड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये आ रही है कि वो ममालिक जिनके टैरिफ हमसे कम थे वो अब एट पार हो गए. एनर्जी की कॉस्ट हमारी जो है वो काफ़ी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस आधी हो गई आपको पता है 11% 18% कम हुए हैं हमारी एनर्जी की प्राइस, यानी कि बिजली की प्राइस. नो, 18% इज सब्सटेंशियल डिक्रीज. और अब एक गुड न्यूज़ और आप इंशाल्लाह आप सुनेंगे कुछ दिनों में कि इंटरनेशनल लाइक यू सेट के जी ऑयल के प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं, काफ़ी हद तक जी. तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी हमें कुछ रिलीफ मिलेगा. और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम काम कर रही है, कुछ IPPs के साथ फर्दर नेगोशिएशंस हो रही हैं. अगर वो कामयाब होते हैं तो 1.5 से 2 रुपए फर्दर हमें रिलीफ मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. तो इससे अनबिलीवेबल थिंग्स जो हो रही हैं. और अगर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आप यकीन करें इसके एडवांटेज लेते हैं. और टैरिफ जो दूसरी कंट्रीज़ का बढ़ गया है, हमें पाकिस्तान को उससे बेनिफिट मिलेगा. तो आप यकीन करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स टूवर्ड्स USA बढ़ सकती है. मगर साथ ही हमें ये चाहिए कि फ़ौरन हम अपनी टीम को प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका भेजें. कल ही की खबर है कि 50 कंट्री से लोग जा रहे हैं अमेरिका, एंड दे आर टॉकिंग टू देम कि अगर हम अमेरिका को कुछ रिलीफ देते हैं तो क्या वो थोड़े बहुत कुछ हमारे लिए कम कर सकता है. तो अगर हमें 5% का भी बेनिफिट मिल जाए जिसमें हम उनको अकोमोडेट कर लें अमेरिका को, क्योंकि हमने टैरिफ बहुत ज़्यादा जी. तो अगर ये हम उनको थोड़ा सा कन्विंस कर लेते हैं 5% के लिए, तो आप यकीन करें कि जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी टूवर्ड्स USA उसके अंदर बड़ा इजाफा होगा. मगर साथ ही हमें ये देखना चाहिए हमारे बिजनेसमैनों को कि हमारी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है 65% एक्सपोर्ट इज़ टूवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका. यूरोप इस रिसेशन चल रहा है इस वक्त, और अमेरिका के अंदर आपने देखा है कि टैरिफ्स वार चल रही है. तो अगर हम नई मार्केट और नए प्रोडक्ट इस वक्त थोड़ा सा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. अफ्रीका इज़ अ मार्केट. मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ. 1.5 बिलियन की आबादी है अफ्रीका की, और अफ्रीका की तरफ हमने कभी तवज्जो दी नहीं बिल्कुल. जबकि चाइना को आप देखिए और इंडिया को देखिए कि वो अफ्रीका के अंदर पेनिट्रेट कर गया है. तो नए मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ नेगोशिएशंस अगर हम अमेरिका को इंगेज करते हैं तो हमारे लिए आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स में सब्सटेंशियल इंक्रीज होती है इसके अंदर जी. बिल्कुल. तो सर अभी आप बात कर रहे थे एनर्जी की, राइट? तो एक बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ इज़ कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है, राइट, हम प्रोड्यूस तो बहुत करते हैं. द प्रॉब्लम कम्स इन हमारी रिफाइनरीज इतना क्रूड ऑयल से फर्नेस ऑयल में वो जो कन्वर्जन होती है, वो जो प्रोसेसिंग होती है, वो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो नहीं कर पाते. 2019 से रिफाइनरी पॉलिसीज़ की बातें चल रही हैं कि आपकी जितनी रिफाइनरीज हैं उनको इंसेंटिवाइज की जाए, क्योंकि एक्चुअली उनकी मशीनरी बहुत पुरानी होगी. Exactly, राइट. सो इज देयर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इफ नॉट हम एज सिटीजन्स किस तरह से अर्ज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ पे फोकस करें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट है. आपने बिल्कुल सही कहा जी. हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही है, हैंडीकैप रहा है कि हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी कम है और बहुत पुरानी मशीन्स हमारी हो गई हैं. सऊदी अरब ने कोई $1 बिलियन से ज़्यादा कहा था कि बलूचिस्तान में वो एक रिफाइनरी लगाने को तैयार हैं, मगर बाद में कुछ हालात वहाँ के जो ख़राब हो गए, गड़बड़ शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो थोड़े से पीछे हट गए. तो रिफाइनरी से इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है हमारी. देखिए इस वक्त अगर हमारे पास रिफाइनरी की कैपेसिटी हो तो इस वक्त देखिए आप $60 के ऊपर जो ऑयल आ गया है, और हमारी स्टोरेज हो तो हम इस वक्त ख़रीदें, क्योंकि जब हम
प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उस वक्त जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली, और उसका असर जो है फिर वो आपको भी पे करना पड़ता है, हर एक को पे करना पड़ता है, हायर प्राइसेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो ज़रूरत है कि स्टोरेज भी बढ़ाएं और ख़ास तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो हैं हम ऑयल रिफाइनरीज के अंदर की जाए चीज़ के अंदर। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी, आपके जो बिजनेसेस हैं, कहाँ से आपने शुरू किया, कैसे आपने अपने आप को एक्सपैंड किया और अब आप जहाँ हैं तो आप कैसे पहुँचे ताकि लोग भी इंस्पायर हों। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड इन ए वे कि अल्लाह ने साथ दिया, सही डिसीजंस लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप गलत डिसीजंस लेते हैं तो हर्डल्स भी क्रिएट होती हैं। सही डिसीजंस लिए इस वक्त हमारे बिज़नेस जो है वो यूएई के अंदर भी काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, मोरक्को में हम बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर व्हाट डू यू एक्सपोर्ट? देखिए, हम डेनिम इस वक्त जा रही है और मोरक्को इज़ द कंट्री, लास्ट ईयर 20 मिलियन टूरिस्ट दे विजिटेड मोर देन यूएई, दुबई से ज़्यादा विजिट किया। तो वहाँ पे होम टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है, इतने ज़्यादा होटल्स वहाँ पे 5 स्टार हैं, उनको जी बेडशीट्स भी चाहिए होती है, उनको जी टॉवल्स भी चाहिए होते हैं, उन्हें कर्टन भी चाहिए होते हैं। तो वी सप्लाई टू द होल, नॉट ओनली टू मोरक्को बट आल्सो टू द अफ्रीकन मार्केट जी। यूएई में वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी आर इनटू अदर things also, and mashallah पाकिस्तान के अंदर भी we are into real estate जी also, and we are into textile. We are very blessed in a way कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी जा रही हैं बुरे वक्त में भी। और साथ ही जी, ये तो बिज़नेस का आपने ज़िक्र किया है, साथ ही मैं ये सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है तो आप लेस प्रिविलेज के लिए भी कुछ करें। आई एम रनिंग अ फाउंडेशन बाय द नेम ऑफ मेक ए विश फाउंडेशन, जो डाइंग बच्चे जो होते हैं उनकी कोई भी जो एक विश होती है उसको पूरा करता है। साथ ही जी, मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स, और इस वक्त $800 मिलियन का जी हमारा पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड है विद मोरक्को। लाइक आई सेड कि जी बहुत बड़ी मार्केट है अफ्रीका, और मोरक्को इज़ अ वेरी बिग मार्केट। सर आप ज़रा मोरक्को को कन्विंस करें ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें हमारी कैपिटल मार्केट्स में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जी इसके लिए 2 चीज़ें करता हूँ, और अगेन सितंबर के अंदर मैं एक बिजनेसमैन डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप भी अगर उसका पार्ट बनते हैं। सर आई वुड लव टू। और देखिए, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि हमारे बिजनेसमैन भी और ये हमारी कैपिटल मार्केट के लोग भी हैं, वो यूरोप और अमेरिका को ही बाहर को टैप करते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बड़े रिच लोग हैं जी, आबादी भी ज़्यादा है, सब कुछ है। तो उस डेलीगेशन के अंदर अगर आपके कुछ लोग आते हैं तो हम उनकी जी मीटिंग वहाँ पे करवाएंगे। Sir, please, you must share और the आप details. यकीन करें, क्योंकि मोरक्कन्स को भी कुछ अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान के बारे में। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनकी आगे खुलती हैं कि पाकिस्तान, और हमारी जी एक तो ख़ास तौर पे हमारी बैंकिंग सेक्टर बड़ा है, फाइनेंस सेक्टर हमारा बड़ा जो लुक्रेटिव है, बाहर के लोग इन्वेस्टर्स करते हैं क्योंकि रिटर्न्स आर वेरी हाई कंपेयर्ड टू उनको मिल रहे हैं। तो इसमें आप ऐसा कीजिएगा कि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं जो डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ, अगर आप लोगों की तरफ से कोई उसके अंदर आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से जी हम कुछ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाएं। जी पाकिस्तान में अब जिस वक्त जो आप देखेंगे कि हमारा ग्रोथ का शुरू हो चुका है जी, और इसकी तारीफ सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की जो किया है हालात को सही किया है। देखिए, इस वक्त टर्की की लास्ट टाइम भी मैंने आपको मिसाल दी थी, टर्की में इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट 40% चल रहा है, उनका इन्फ्लेशन जो है वो 50% जो है इन्फ्लेशन जा रहा है, और वो लोग उस पर काबू नहीं पा सके। और अल्लाह की देखिए कामयाबी अल्लाह ने दी है हुकूमत को, कि हुकूमत ने काफ़ी चीज़ों पे 60 साल के अरसे में सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं आया था जो हमारा इन्फ्लेशन जो है इस वक्त आ गया है। पिछले महीने की 0.7% पे रिकॉर्ड हुई है। बतलाइए, ये बहुत बड़ी चीज़ मतलब मौजे हुए हैं, मगर बुरा वक्त भी हम लोगों ने देखा है। पाकिस्तान में आपने देखा है कि जब इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत हाई थे, हमारी कौम ने बड़ी कुर्बानी दी थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि इसमें आर्म फोर्सेस ने हमारा बड़ा साथ दिया, आर्मी चीफ ने बड़ा साथ दिया। एक वक्त था, ये प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि जब IMF अगर हमारे साथ मुआहदा नहीं करता तो पाकिस्तान अबाउट टू बी डिफ़ॉल्ट, यू नो, मतलब। और उसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने UAE से बात की, उन्होंने सऊदीया से बात की, और रोल बैक उन्होंने अपने जो कर्ज़े हमें फंड्स यहाँ पे प्लेसिंग की हुई है, फाइनेंशियल गैप आ रहा था उसको पूरा किया, कुछ और कर्ज़े दिए। तो जी बुरे वक्त से हम अब निकल आए
हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अब रिमिटेंसेस के अंदर 30% इजाफा हुआ है। बताइए 30% जी, पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी रिमिटेंसेस हो जाएंगी। हमारी 32 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारी इस वक्त 35 बिलियन को क्रॉस कर रही हैं हमारी रेमिटेंसेस। अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं। बहुत ईद का टाइम भी था, पीपल वर सेंडिंग मनी बैक अपने प्यारों के लिए। हाँ जी, नहीं थ्रू आउट मैं तो ईयर की बात कर रहा हूँ। ये मंथ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ईद पे ज़्यादा लोग देखते हैं जी। हाँ, और बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान अब बुरे वक्त से निकल आया, अब हमारी प्रोग्रेस शुरू हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे रेवेन्यू के अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। जो टैक्स रेवेन्यू थे एक वक्त के अंदर था, मिसाल के 2012-14 के अंदर हम टोटल 2000 बिलियन जो थे रुपीस जो है वो कलेक्शन होती थी। इस वक्त हम 13 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, यानी कि 13,000 अरब की कलेक्शन हो रही है। ये थोड़ा सा उसमें शॉर्टफॉल आया है, तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं। बड़ी अच्छी टीम है हमारी प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर को मैं काफ़ी, आप यकीन करें, करीब से जानता हूं। जो मेहनत वो करते हैं, सुबह उठ के रखते हैं और रात के 11 बजे तक वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। सर पता है, नज़र आता है द वे दैट आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, जिस तरह से आपकी इकोनॉमी एक इतनी एक्सट्रीम डेट्रीमेंटल स्टेट से निकल के अब एक इतनी माशाल्लाह से रिलेटिवली स्टेबल साइड की तरफ आ रही है, और ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज और मोमेंटम भी दिखा दिया साथ साथ में। तो इट शोज क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, मोस्ट सर्टेनली। जी हाँ, बिल्कुल। और आने वाला वक्त आप देखेंगे और बेहतरी आएगी। खासतौर पे SIFC जो है, आपको पता होगा, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बनाया है, जिसमें हम बाहर से $20 बिलियन की गल्फ कंट्रीज़ ने प्लेजेस की हैं कि हम आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के माइनिंग में वो लोग हैं, एग्रीकल्चर में बहुत हैं, क्योंकि देखिए हमेशा से गल्फ कंट्रीज़ को, क्योंकि उनके पास रेगिस्तान है, एग्रीकल्चर के इतने मौके नहीं है, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए। जिसके लिए अगर हमारा ये पॉलिटिकल थोड़ा सा सिनेरियो सही हो जाए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मईशत को तंग नहीं करें, अपनी सियासत को हर एक को हके आप करें, मगर हम ये करते हैं कि जैसे आपको पता होगा, there needs to be some kind of charter that is जी हाँ, exactly, this is what Prime Minister said couple of times कि let's sign a charter of economy, जिसमें अब हमने देखिए क्या इकोनॉमी को आप प्रोटेक्ट करें। आपको सुन के हैरानगी होगी, जब IMF से हम मुआहदा करने जा रहे थे तो उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे थे कि नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जो हैं मुआहदा नहीं कर रहे हैं, लेट पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने दें। आई मीन, अगर देखिए आज मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं है तो क्या हमारी पॉलिटिक्स चलेगी? नहीं, पॉलिटिक्स तो नहीं चलेगी। इसी तरह देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा कि नहीं, आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें अगर आपने भेजना है, डोंट सेंड द मनी बाई बैंकिंग चैनल। रीज़न बीइंग कि वो नाराज़ हैं क्या कहते हैं हुकूमत से। देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, कोई तरीका नहीं। तो खुदा रहा अपनी सियासत के अंदर मीशत को मत लाएं, लेट मीशत ग्रो, क्योंकि उसका बेनिफिट जी आने वाली कल को अगर वही पार्टी कल आती है तो वो भी इंजॉय करेगी ना। सब रात जो हैं आज हमारी इकोनॉमी अगर अच्छा कर रही है, और ये किसी और कंट्री में ऐसा सोचा भी नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचा के कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जी हाँ, इसी तरह IMF का वफ्द जब आता है उसको फूल किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ आप ये, इट मीन्स कि आप उनको मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद नहीं करें। मगर डिस्पाइट एवरीथिंग देखिए अल्लाह मियां ने पाकिस्तान की मदद की, मुश्किलात से निकल आए। आप यकीन करें कि टर्की के प्रेसिडेंट वगैरह आए थे, वो इनसे पूछ रहे थे किस तरह आपने इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, क्योंकि अभी तक टर्की बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है। आप देखिए अगर आप फाइनेंस हैं और मैथ्स को समझती हैं, उनका आप ज़रा इन्फ्लेशन देखिए, उनका इंटरेस्ट रेट देखिए कि 40% जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। हम 22 से कहाँ पे आ गए, 12 के ऊपर आ गए। डेट्रीमेंटल एक इकोनॉमी। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, मोस्ट सर्टनली। तो सर हमारे इन्वेस्टर्स बहुत दफ़ा इनके साथ ये होता है कि आपने डबल शाह का नाम सुना हुआ होगा, हाँ जी, राइट? तो बहुत सारी डबल शाह नई शक्लें बना के आता रहता है इन द मार्केट। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कैम्स।
तो लोग किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में? आपने अपने आप को किस तरह सेफ रखा है? देखिए, दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये आपके क्वेश्चन से लिटिल बिट डिफर कर रहा हूँ। रोशन डिजिटल पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल फॉरेन आपके जो पाकिस्तानी 7-8 बिलियन आ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास जो पैसे हैं बाहर, अगर वो पाकिस्तान में प्लेस करते हैं इन डॉलर, तो उसमें पहले वक्त में तो कोई 8-9% था, अब कोई 7% के ऊपर वो आ गया है। इवन डॉलर टर्म्स में मिसाल अगर 7% आपको मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड रिटर्न। इस वक्त आप अमेरिका वगैरह में जाए 2%, 1% ये हो रहा है, तो पाकिस्तानियों को तो मैं एडवाइस करूंगा कि इससे एडवांटेज लें। डेफिनेटली ये रोशन डिजिटल, और आपको पता है आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज करते हैं आप जी। बल्कि एक और अच्छी चीज़ इन्होंने एक इसके अंदर विंडो दी है कि आप अगर बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं तो कन्वर्टेबल अकाउंट है, यानी कि आप पाक रुपीस में कर लें और बाद में अगर आपको लेके जाना है तो यू कैन टेक इट बैक डॉलर। तो बहुत अच्छा जी है। और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। यूएई के अंदर क्योंकि मेरा मैं रहता हूँ, इस वक्त मुश्किल से दरम पे 3-4% भी नहीं मिल रहा, डॉलर के ऊपर 2-3% नहीं मोस्ट सर्टेनली। अगर पाकिस्तान में आपको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है तो 100% पाकिस्तान जी 100% correct 100% correct. But sir, with that we are out of time, so I would like to thank you so much for being with us. And आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे when our capital markets are open, ready for business, and so are we. आप देख रहे थे The Inside Scoop. This is Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.